Hello, we'll start in a minute's time. In the meantime, please switch on your videos and then we will get started. Jagrati, Mavish, Harsh, please switch on your videos. Jagrati, Mavish. Yeah. Jagrati, you have to switch on your video. Jagrati Arora, we are waiting for... Excuse me, sir. Excuse me, sir. Yeah. My name is Rajni Arora. I am changing my name. The account has been opened by my daughter, so that's why Okay, the name okay. is changed. Okay, I am okay, giving my okay. name. Okay, okay, okay. Yeah, sure, sure, please. Okay, so we will get started. Write the expression for the field, right? We were doing this. Write the expression for the field due to the electric dipole at a large distance from the center of a dipole. ठीक है? तो कल हम ये वाला पार्ट कर रहे थे, which is related to the dipole. Okay, dipole क्या होता है? Dipole होता है two equal and opposite charges plus q and minus q separated by a distance 2a. Then dipole moment, which is often depicted by p, which is a vector quantity, is equal to 2aq. Okay. Now, and it is directed from minus q to plus q. So this is the direction of p vector. Okay, so this is electric dipole moment. Now there are two special cases that we should remember about it. When there is a field being measured along the axis, means the line joining minus q and q, which is at a distance of r. R हम हमेशा कहाँ से measure करते हैं, ये याद रखिए. R is always measured from the center of the distance between q and minus q. यानी कि ये डिस्टेंस भी a है और ये भी a है. तो ये हम केवल लार्ज डिस्टेंसेस के लिए ये फॉर्मूलाज हैं सिंप्लीफाइड. तो जब हम एक्सिस पे फॉर्मूला लेते हैं तो वो आता है 2p/4πε0r³. तो इसमें क्या क्या चीजें याद रखनी है कि यहाँ पे r स्क्वायर की जगह r³ है, अनलाइक द अदर फॉर्मूले. Another thing to remember is there is also a 2 here. Okay, and the direction is in the direction of p, means minus p to q. वही इक्वेटोरियल प्लेन में, यानी a plane which is actually drawn through the center, right, vertical to the axis, इसको बोलते हैं इक्वेटोरियल प्लेन. ऐसे प्लेन को जब इस पे कोई पॉइंट होता है, वो कहीं पे भी हो इस पे,
तो वो जो पॉइंट है विच इज एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम दिस सेंटर, अगेन दिस number is exactly half of this, means this 2 is missing and the direction is opposite. ठीक है, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, हमको याद रखने. ओके, व्हाट इज द टॉर्क. अब इसके ऊपर एक और चीज जो हमें याद रखनी है इस चैप्टर में, ऑल्दो डाइपोल मोमेंट के ऊपर हम चैप्टर 2 में भी बहुत कुछ करेंगे, लेकिन इसमें केवल एक और चीज याद रखनी है, वो है टॉर्क. टॉर्क का क्या मतलब है कि एक यूनिफॉर्म फील्ड है E, जिसका मैग्नीट्यूड E है, और ये कैसी है, यूनिफॉर्म. ये तभी अप्लाई होता है. और ये जो है हमारा डाइपोल, ठीक है, ये किस तरह से प्लेस्ड है, it is placed at an angle theta. Then the torque acting on it, torque is acting like this on this, right? So this torque that is acting on this is PE sin theta. Okay, so that we need to know. We should also know that there is no net force. मतलब कि अगर मैंने अपने डायपोल को यूनिफॉर्म फील्ड में ऐसे रख दिया, तो वो केवल रोटेट होकर अलाइन होने की कोशिश करेगा फील्ड के साथ. ठीक है, वो फील्ड के साथ अलाइन होने की कोशिश करेगा, बट घूमकर, बट इट विल नॉट ट्रांसलेट. ओके, ये सब चीजें हमें पता होनी चाहिए. विद दिस नाउ लेट्स डू सम क्वेश्चंस ऑन दिस एंटायर चैप्टर नाउ. ओके, सो महावीश, हर्ष, बेटा आपके दोनों के वीडियोस ऑफ हो गए. प्लीज स्विच ऑन योर वीडियोस. ठीक है, अपने वीडियोस ऑफ मत करिए, क्योंकि वीडियोस ऑफ हैं तो फिर हम प्रोसीड नहीं कर पाते हैं क्लास के लिए. सौरभ, प्लीज स्विच ऑन योर वीडियो. Okay, yeah, yes, Saurabh. Okay, I can see you now. Okay, great. So let's continue. If an electron moving with a velocity v, okay, enters a transverse uniform electric field, what would be the path taken by the electron? ठीक है, तो इसका मीनिंग कौन मुझे बताएगा? सी, यू विल हैव टू अटेम्प्ट एटलीस्ट समथिंग. सो आप मुझे बस क्वेश्चन का मीनिंग बताइए पहले कि क्या है ये क्वेश्चन. इसमें ट्रांसवर्स यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है, इसका क्या मतलब है? कैन, विदाउट आंसरिंग दैट पार्ट वी कैन प्रोसीड. तो ये ट्रांसवर्स यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या मतलब होता है? हु विल आंसर दैट क्वेश्चन? Yes, who will answer this? Mavish, can you answer this question? ट्रांसवर्स का क्या मतलब होता है? देखिए, फिजिक्स में हमने और चैप्टर्स में भी पढ़ा है ट्रांसवर्स. क्या होता है ट्रांसवर्स? आपने बायोलॉजी में भी पढ़ा होगा, फिजिक्स में भी पढ़ा है. इन दो में तो हम काफी कॉमनली पढ़ते हैं, राइट? मैथ्स में भी पढ़ते हैं इस वर्ड को. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रांसवर्स? एनीबॉडी? संदीप कुमार, आप बताएंगे क्या होता है? बेटा ट्रांसवर्सल, अच्छा चलिए किसी चीज से रिलेट करके याद करने की कोशिश करते हैं. तो कई बार क्या हो जाता है कि कोई वर्ड ऐसा आ जाता है हमारे क्वेश्चन में जिसका हमें मीनिंग नहीं पता होता, तो हम उसको किसी और चीज से रिलेट करते हैं जो
उस रूट वर्ड से आती हो और समझते हैं कि इसका क्या मीनिंग है। ट्रांसवर्स आपको कहाँ और सुना हुआ वर्ड लगता है, बस ये बताइए। फिर ट्रांसवर्स वेव पढ़ा जाता है। बिल्कुल, वेरी गुड। सो ट्रांसवर्स वेव हम पढ़ते हैं, तो ट्रांसवर्स वेव और लॉन्जिट्यूडनल वेव्स, दो तरह की वेव्स पढ़ते हैं। तो उसमें जो ट्रांसवर्स वेव्स हैं वो किस तरह की वेव्स होती हैं, उसमें क्यों उसको हम ट्रांसवर्स बोल रहे होते हैं, किस वजह से ट्रांसवर्स कहलाती हैं, उसमें जो मूवमेंट है पार्टिकल्स का वो कैसा होता है, कैसा होता है, at 90 degrees to the path of propagation of wave, right? तो ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव होती है वो। और पार्टिकल्स कैसे मूव करते हैं, एट एन एंगल 90 डिग्री। ठीक है, तो इसका मतलब यहां से ही आप इसका मीनिंग समझ सकते हैं कि ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब ये कि अगर इलेक्ट्रॉन ऐसे आ रहा था, ठीक है, इलेक्ट्रॉन इस तरह आ रहा था, तो इससे 90 डिग्री पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, पाथ से 90 डिग्री पर, ठीक है, उसको हम कह रहे हैं ट्रांसवर्स। तो यहाँ पे ऑब्वियसली यू शुड नाउ रिमेंबर व्हाट ट्रांसवर्स इज। दूसरी चीज व्हाट यू शुड रिमेंबर इज कि कई बार हमें शब्द का एग्जैक्ट मीनिंग नहीं समझ आता है एग्जाम में, ऐसा हो जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तब हमको रिलेट करना चाहिए अपनी दूसरी इंफॉर्मेशन से और उसका मीनिंग समझने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि केवल एक मीनिंग नहीं समझ आया उसकी वजह से क्वेश्चन ना छूट जाए। ठीक है, अब क्लियर है, क्वेश्चन इज वेरी क्लियर नाउ कि ऐसे एक इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है। सॉरी, लेट मी रीड्रॉ दिस अ लिटिल नीटर। एक इलेक्ट्रॉन ऐसे आ रहा है, ओके, एक इलेक्ट्रॉन ऐसे आ रहा है जिस पे चार्ज है माइनस ई का चार्ज है, और एक इलेक्ट्रिक फील्ड है जो उससे परपेंडिकुलर है, ऊपर है नीचे है ये तो हमें नहीं बताया गया, तो आई विल जस्ट ड्रॉ इट लाइक दिस, ओके। और ये यूनिफॉर्म है, तो ये ई है। अब ये जब इसमें एंटर करेगा, क्वेश्चन पूछा गया है कि उसका पाथ क्या होगा, ठीक है ना। पाथ मीन्स वी विल हैव टू आंसर सम ज्योमेट्रिकल शेप। संदीप, अनन्या, हर्ष, विकास, बेटा अपना वीडियो ऑन रखिए, आप सबका वीडियो ऑफ हो गया। बताइए इसका क्या पाथ होगा, कोई ज्योमेट्रिकल शेप में होगा आंसर, राइट। तो क्या होगा, क्या ये सीधा निकल जाएगा ऐसे, क्या ये ऐसे यू टर्न लेगा, या ये सर्कुलर मोशन में जाएगा, पैराबोलिक मोशन में जाएगा, हाइपरबोलिक में जाएगा, उस तरह का कोई आंसर होना चाहिए, इतना तो हमें समझ आता है। तो इसका आंसर क्या होगा, क्वेश्चन को बिना पूरा सॉल्व करे भी हम इस क्वेश्चन को आंसर कर सकते हैं फ्रॉम अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ फिजिक्स, ओके। so that is what I am looking for. Okay, so anybody can try this now. Anyone? नो सर। ओके, सो देखिए किस तरह की ये सिचुएशन है। पहले नेचर ऑफ फोर्स समझ लीजिए। अगर फील्ड इस डायरेक्शन में, ये इलेक्ट्रॉन जब यहाँ एंटर करेगा फील्ड में, तो इस पे फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगी, इसमें फोर्स ऑपोजिट लगेगी इलेक्ट्रिक फील्ड से, तो वो Yes, फोर्स sir. लगेगी ये, और इसकी क्या वैल्यू होगी, E इंटू कैपिटल ई, राइट, चार्ज इंटू फील्ड, वो फोर्स लगेगी इस पे। जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी है, इस पे क्या कोई फोर्स लगेगी, नहीं लगेगी, राइट। पूरी की पूरी फोर्स इस डायरेक्शन में लग रही है। तो अब इसके क्या कंपोनेंट्स बनते हैं, एक तो इस पे यहां फोर्स लग रही है, अगर फोर्स लग रही है तो इसका मतलब इस पे एक्सेलरेशन होगा, तो एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में है,
और एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है v का जो कभी चेंज नहीं होगा, एक कांस्टेंट कंपोनेंट है v का यहाँ पे, और एक हॉरिजॉन्टल उसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट एक्सेलरेशन का है। ये सिचुएशन कौन सी सिचुएशन है? हमें क्वेश्चन सॉल्व भी नहीं करना पड़ेगा, ये कौन सी सिचुएशन आप पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। दिस इज सेम एज थ्रोइंग अ बॉल हॉरिजॉन्टली फ्रॉम द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग। तो एक उस पे कांस्टेंट फोर्स लग रही है mg नीचे की तरफ, यानी एक्सेलरेशन g नीचे की तरफ, और एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है v। तो ये कैसे जाता है? ये पैराबोलिक जाता है, ये तो हमें याद है ही, राइट? यस सर। तो ये तो क्योंकि प्रोजेक्टाइल मोशन है, हमने 11th के बिल्कुल शुरू में किया और उसके बाद बहुत सारे और टॉपिक्स में भी इसको रीयूज करते रहे हैं, राइट? सो ये चीज तो अच्छे से याद होती है। तो इसका आंसर हम बिना, केवल ये जैसे ही हमने ये किया बिना सॉल्व करे हम इसका आंसर लिख सकते हैं पैराबोलिक बात, ठीक है? वरना आप सॉल्व करना चाहते हैं तो आप पूरा सॉल्व करेंगे इसको कि ये इसकी एक्सेलरेशन है ई बाय एम एक्सेलरेशन है, फिर आप इसका v कंपोनेंट निकालेंगे, s की दोनों डायरेक्शन में इक्वेशंस लिखेंगे, और इवेंचुअली ये you will find that it is of the type this, and hence it's a parabola. But we don't have to do all that. Okay, we can directly relate it to what we know in gravitation and answer this question. ठीक है ना? क्योंकि अगर ये एक नंबर का क्वेश्चन है, we don't have to show that working. Okay. Okay, let's do the next question now. Why don't the field lines have any breaks? Okay, these are theoretical questions now. Field lines में कोई breaks क्यों नहीं होते हैं? बेटा वीडियोस फिर ऑफ हैं सबके, डोंट डू दैट। सर आपकी आवाज नहीं आती फिर क्लियर। Actually, see, I don't know why that should happen. ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि you know when I, let's say मैं जब 10th क्लास का जो स्पेशली, उसमें तो बहुत बच्चे होते हैं, राइट? और उन सबके वीडियो ऑन होते हैं, and I never receive a complaint कि उनको आवाज नहीं आ रही है। Actually, they always keep answering all the questions also. तो ऐसा मेरे होगा नहीं। नेटवर्क में प्रॉब्लम है। वो ना एक्चुअली वीडियो को डीप्रायोरिटाइज करेगा। आप करके देखिए, ऑन करके रखिए, देखते हैं, ठीक है? सर देख लिया, पहले किया था, आई नहीं रही थी सर, कट कट के आ रही थी। अच्छा, ठीक है। व्हाट्स द प्रॉब्लम विद संदीप, अनन्या? हाँ, ठीक है, अभी बताइए। Why don't the field lines have any breaks? ठीक है, ये तो हम जानते हैं, ये सच है, ब्रेक्स नहीं होते हैं, कंटिन्यूअस होती हैं। तो उनमें ब्रेक्स क्यों नहीं होते हैं? हाउ विल वी आंसर दिस क्वेश्चन? शॉर्ट आंसर हैं ये सब, जस्ट अ फ्रेज विल बी द आंसर। क्या है इसका आंसर बताइए, एनीबडी? दिस इज समथिंग यू हैव डन इन क्लास 10 ऑल्सो, तो ये नया क्वेश्चन नहीं है। बताइए बेटा, गलत आंसर होगा तो कोई टेंशन नहीं है। So Somebody, because they have a strong like हाँ देखिए, आंसर क्या है इस चीज का कि अब क्या होती है फील्ड लाइन, उससे समझते हैं। आंसर में उतना नहीं लिखना है हमें। फील्ड लाइन क्या चीज है कि जो वो ये बताती है कि अगर मैं एक चार्ज लेता हूं, ठीक है ना, तो उससे अगर मैं कहीं पे भी कोई चीज रखता हूं, राइट, तो उस पे किस डायरेक्शन में फोर्स लगेगी, राइट, और किस डायरेक्शन में वो फील्ड है, राइट? अब अगर मान लीजिए मेरी फील्ड ऐसे जा रही है, यहाँ पे एक ब्रेक हो गई और यहां से फिर शुरू हो गई, तो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फील्ड एट दिस लास्ट पॉइंट, राइट? We cannot specify the direction of this vector at the last point.
right? So a discontinuity will mean two things, okay? That charges cannot jump. Okay, also because it shows the path of a charge moving along this line, right? So charges cannot jump is one answer you can give. And the other answer that you should give is then determining, or rather than that, we can say then the direction at the point, direction of E, sorry, direction of E at the point of discontinuity will be undefined. Okay, which is not possible. अगर E है तो उसकी डायरेक्शन भी जरूर हो. Okay, तो इसके ये दो आंसर्स हैं, that the charges cannot jump and the direction of E at the point of discontinuity would be undefined, which is not possible. Okay, now a second similar question again from class 10. Why don't the field of lines intersect each other? फील्ड ऑफ लाइंस इंटरसेक्ट क्यों नहीं कर सकते कभी भी? Who can answer this question? बेटा याद करिए, 10th में भी किया आपने. Because then the field will have to. हाँ बोलिए. सर क्योंकि टेंजेंट होता है नहीं क्योंकि देखिए, अगर ये देखिए ना कि इस पॉइंट पर अब ये भी डायरेक्शन ऑफ फील्ड है और ये भी डायरेक्शन ऑफ फील्ड है. Can the direction of field be two different directions? वेक्टर की तो एक ही डायरेक्शन होती है ना. एक्सक्यूज मी सर, सब बच्चों ने वीडियो वो बंद कर ली है. हाँ, किसी की भी वीडियो ऑन नहीं है सर. बहुत गलत बात है. क्लास 12 में बार बार डिस्टर्ब करना एक फ्लुएंसी पढ़ाई की पूरी खत्म हो जाती है. डोंट वांट टू डिस्टर्ब सर अगेन एंड अगेन. बेटा देखिए, बार क्या बार बात है वीडियो संदीप कुमार, क्या एक ही बात को बार बार बोलना बहुत अच्छा लग रहा है क्या आप लोगों को? आदित्य राजपूत, वेयर आर यू? हर्ष ठाकुर, आदित्य राजपूत एंड अनन्या अग्रवाल, वेयर आर यू? सर आप इनकी वो कर दीजिए, क्लास से निकाल दीजिए आप इनको, एकदम निकाल दीजिए सर. और मैं भी अटेंडेंस में इनके एब्सेंट लगाऊंगी. पढ़ाओ सर आप. हाँ. Harsh, I'm going to remove you also. Okay. ओके सर कर दो. देख रहे हैं सर इनको, कोई वो नहीं है. ओके सर दो. इनको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है. देखिए सर, That's amazing. क्लास 12 को तो ये ऐसे समझते हैं क्लास 1 2 की पढ़ाई हो रही है. कहने दीजिए सर, आप कंटिन्यू कीजिए. छोड़ दीजिए. निखिल नागर, Okay. So, see, look at this point now. At the point of intersection, the field will have two directions if they intersect. A vector can have only one direction. Okay. And hence, this is not possible. So, they cannot intersect. Okay, now let's do this question. This question has also appeared in the board exam, although a long time back. A uniformly charged conducting sphere of 2.5 meter in diameter has a surface charge density of 100 microcoulomb per meter square. Calculate the charge on the sphere and the total electric flux passing through the sphere. How would we do this question now?
बताइए। Yes. How would we do this question? Anyone? This is a simple question. No one? No one can answer this. Charge on the sphere कैसे निकालेंगे? देखिए हमें चार्ज डेंसिटी दी हुई है, सिग्मा दिया हुआ है. Just a second, just a second. ओके, सिग्मा कितना है? But somebody has to answer. At least sigma, can you identify what is sigma here? Mahavish, Nikhil, Naga. Mahavish, beta, what happened? Why is your video off? And Nikhil, देखिए सर, सबने वीडियो वो कर लो। Mahavish, your video is generally on. What happened to you today? Pending class. Yes. Nikhil, you are the only one with your video off. Please switch it on. And what is sigma here? Can somebody answer that? इतना basic तो answer करना चाहिए ना? क्या है sigma यहाँ पे? See, मैंने underline भी किया हुआ है. How can that be so difficult? 100 microcoulomb per meter square. तो चार्ज कैसे आएगा? एरिया इंटू सिग्मा, एरिया इंटू चार्ज डेंसिटी. अब एरिया माइक्रोकूलम पर मीटर स्क्वायर. ठीक है, एरिया क्या है इसका? यस सर, 100. एक स्फीयर का सरफेस एरिया क्या होता है? 4 pi r square, right, into 100 micro. Micro is 10 raised to the power minus 6, right? Now we can just go ahead and write these values. 4 into 3.14 into what is r? The given number is a diameter. So we have to take the half of it as the radius into 100 into 10 raised to the power minus 6. Okay, so this number, okay, I don't want to sit and calculate this number here, okay, but this number is going to be the charge on the sphere, right? And when you're calculating such numbers, try to find ways to do the calculation easily, right? Just for an example, you can go ahead and find this square, right? What 12
125 का स्क्वायर निकालना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है, लेकिन why do you don't even have to do that, right? Why don't you have to find this square? Because it's a good idea to multiply 4 with 1.251 first. Okay, so when you do this, you will get 5 into 1.25, and this you know is 6.25. Okay, so this multiplication is 6.25, right? So it becomes 6.25 into 3.14 into 10 raised to power minus 4. Okay, so that makes the calculation easier. So always look for using basic maths skills to make your physics calculations easier, क्योंकि physics में छोटे छोटे कई बार बहुत सारे numbers होते हैं, ठीक है ना? तो ये आपका क्या आ गया? ये आ गया आपका charge. Okay, I don't want to solve the entire thing here for now. Sorry, 1.4 है 1.4. Okay. Total electric flux कैसे निकालेंगे? Now, how will we find the total electric flux? Can somebody answer? बेटा पूरा चैप्टर रिवाइज हमने किया है, ये तो इजी होना चाहिए ना. इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का? Sir, 1/4 pi epsilon naught. नहीं, फ्लक्स का फॉर्मूला बहुत ही सिंपल है, Q बाय एप्सिलॉन नॉट. बस इतना ही तो फॉर्मूला होता है. दिस इज व्हाट गॉसेस लॉ, which is the fundamental law of electrostatics. ठीक है, तो बस इसको लिखना है आपको 6.25 into 3.14 into 10 raised to power minus 4 by the value of epsilon. What is value of epsilon? 8.85 into 10 raised to the power. Anybody remembers? बेटा एप्सिलॉन की वैल्यू कई बार एग्जाम में नहीं दी होती है, हमें याद रखनी जरूरी है. क्या होती है? 8.85 into 10 raised to the power minus 12. ठीक है, इस वैल्यू को याद रखिए. दिस इज इंपॉर्टेंट. एक तो ये याद रखिए और दूसरी इसकी वैल्यू याद रखिए, राइट? क्योंकि ये भी ऑफन यूज्ड फॉर्म है. तो ये क्योंकि सिंपलर वैल्यू आती है इसकी, तो ये बेटर होता है कि हम इसे तो जरूर याद रखें. ये इजी होती है याद रखनी. और अगर आप बहुत फंस जाते हैं तो आप इससे एप्सिलॉन की वैल्यू निकाल सकते हैं, लेकिन दैट विल वेस्ट योर टाइम. सो इट्स अ गुड आइडिया टू रिमेंबर बोथ दीज वैल्यूज. ठीक है, तो नाउ यू हैव टू जस्ट सॉल्व फॉर दिस. और इस तरह के क्वेश्चंस की कैलकुलेशन देख के हमें घबराना नहीं है. वी हैव टू फर्स्ट एंश्योर दैट वी गेट आवर पावर्स ऑफ 10 करेक्ट. ठीक है, पावर्स ऑफ 10 आपकी एक बार करेक्ट आ गई, जैसे यहाँ पे पावर 10 की करेक्ट आ जाएगी 10 रेज़्ड पावर 8. ठीक है, और अब हम ये देखते हैं कि ये वैल्यू क्या होगी. देखिए, इट्स वेरी इजी टू डू एन अप्रोक्सीमेशन मेंटली. 6.25 into 3.14 क्या नंबर होगा? 6 into 8 is 18. 6 into 3 is 18. ये 6 से थोड़ा बड़ा है, ये 3 से थोड़ा बड़ा है, ये 20 के आसपास का नंबर है. ठीक है ना? तो ये जो टोटल नंबर है ये 20 के आसपास है, और ये जो है ये 9 के आसपास है नंबर, राइट? सो 20/9 कितना होता है? 2.1 के करीब, 2.2, राइट? तो ये नंबर आएगा रफली 2.2 into 10 raised to power 8 आएगा रफली. और ये पहले वाले का आंसर रफली 2 into 10 raised to power minus 3
कूलम या 2 मिली कूलम आएगा आंसर। ठीक है, तो ये रफ नंबर्स आपको करने आने चाहिए। ऑब्वियसली एग्जाम के लिए आप अपने रफ साइड में इसको जो है पूरी तरह सॉल्व करके आंसर लिखेंगे, लेकिन देन यू विल नो कि अगर ये रफ और ये लगभग सेम है, योर आंसर इज करेक्ट। ठीक है ना, तो रफ कैलकुलेशंस आर वेरी इजी हियर। Always do the rough calculations also. ठीक है? Okay, let's do the next question. This was a very easy question. Okay, now let's look at this question. What does it say? Two identical metallic sphere shells A and B. So ये दोनों identical हैं. This is very important. Okay, two identical metallic spherical shells A and B having charges 4Q +4 है इसके ऊपर और इस पे -10Q है। Okay, Q is some constant, are kept a certain distance apart. ठीक है, let's say they are x distance apart from center. Okay, distance हमेशा center से होता है, x meter apart. A third identical uncharged sphere C is first placed in contact with sphere A. ठीक है, ये A है, ये B है। पहले एक अनचार्ज स्फीयर, वो भी आइडेंटिकल है, हम उसको लेके आए जिसपे कोई चार्ज नहीं है, C को, उसको A से कनेक्ट किया तो ऑब्वियसली उस पे कुछ चार्ज आ जाएगा। फिर उसको ले जाके हमने B से टच कर दिया तो फिर B और इसके बीच में भी कुछ चार्ज आएगा। देन स्फीयर्स A and B are brought in contact and separated. What? Find the charge on the spheres A and B. ठीक है, ये क्वेश्चन बोर्ड में आ चुका है। How will we do this question? This is a very basic type of a question, जिसमें बहुत ज्यादा फंडामेंटल्स नहीं लगेंगे, एकदम बेसिक सा है क्वेश्चन। कैसे करेंगे? No idea? Sir, Q1, uh, sir, Q1 into Q2 upon R square formula लगा के। Q1 into Q2 by R square, ये क्यों Yes, लगाना sir. है हमको? ये हमें लगाने की कोई यहाँ पे आवश्यकता नहीं पड़ेगी ना। देखिए हमको क्या करना है, ये सब आइडेंटिकल है। देखिए ये सब आइडेंटिकल स्फीयर्स, ठीक है, तो हमें कैपेसिटेंस की चिंता ही नहीं करनी है यहाँ पे, क्योंकि सभी आइडेंटिकल है। ओ मोमो मिठू मिठू देते हैं ऐसे ना राती तुम अपना गरम करके खा ले, खराब थोड़ी ना होंगे ना सर्दियां। ओके, सो व्हाट डू वी हैव टू डू? देखिए जब सबसे पहले क्या किया हमने, अ थर्ड इज फर्स्ट प्लेस्ड इन कांटेक्ट विद स्फीयर ए, तो यहाँ पे 4Q था, जब इन दोनों को कनेक्ट किया तो क्या हो गया, हम ABC लिख लेते और सबके चार्ज लिखते जाते। शुरू में यहाँ 4 है, यहाँ -10 है, इस पे 0 है। अब C और A को कनेक्ट किया तो दोनों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गया, तो ये 2 और 2 हो गया, ये तो -10 ही रहा इन द फर्स्ट कॉन्टैक्ट। ठीक है, क्योंकि सबका साइज सेम है। अगर साइज सेम नहीं होता तो फिर what you said, right, we will have to use the capacitance concept. अभी हमें वो लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, फिर and then with sphere B, अब क्या है, C पे 2 कूलम चार्ज है, अब उसको B से कनेक्ट करेंगे तो -8 हो जाएगा टोटल चार्ज जो दोनों पे डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो -4 हो जाएगा। A पे अभी भी 2 ही है। And then A and B are brought in contact. तो A and B को अगर हमने जोड़ा तो टोटल चार्ज -2 हो जाएगा, जो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। -1 and -1 है, C पे -4 ही रहेगा। ठीक है, तो
ए और बी पे क्या चार्जेस बचे आखिरी में? माइनस क्यू एंड माइनस क्यू।